digging down to the bedrock. And so basically in this presentation, we are understanding what is the importance of a head start in the network marketing program or in MLM. So whenever a new whenever a new prospect joins the network marketing program or any MLM program for that matter, there is a there is a certain amount of self doubt involved in it, that he tries to compare himself with the people who are doing very well in network marketing, and they are really far ahead of him. So he starts comparing himself with them, and he thinks that he will never be able to reach that level, and he gets discouraged. But one thing that he doesn't realize is that those people have been in the network marketing program, whatever the program is, for quite some time, and and they have done some efforts to reach there. And what message we need to convey to that person is, he thinks that it's a race, that everyone is running a race, and he needs to run very fast and needs to get ahead of all the other people. But that's not true. We need to put forward a message across we need to put forward a message that network marketing or MLM is not a race. There is no finish line in network marketing. Everyone will succeed, provided he or she does not quit. So as I said, there is no finish line in network marketing, and there is no losing until and unless you don't quit. If you quit, then obviously you lose. As even Don says in this presentation, that only losers are the quitters. And if we when we join a network marketing program, and we start from the very first day, we start looking towards the people who are very far ahead. So for example, if I take my own example, and uh, I start aspiring to be Sukhipaji, uh, that would not be a realistic expectation for my own self, because I have been I have been just introduced to the program, and Sukhipari has so much experience in MLM. And if I say that I want to become Sukhi Longia from day one, that won't be a realistic expectation for my own self. And when a new prospect comes, there is a there is a very high tendency that people start counting days from the day they join a network marketing program. They say that I have been into this program for 60 days or 50 days, and I haven't had any success, or I haven't have any money. uh, there is no money being made for me in this program. I think, as Don explains very well in this presentation, that the first month for any new prospect or any new person that joins a network marketing program, the first month is a training month. And in that training month, everything, including these 10 napkin presentations, should be learned. And uh, more aspects to our training are doing three-way calls, or sponsoring people that with the help of the upline. That is a part of the training. Using the products of the company that you're representing, that is also part of the training. So first month should be a training period. That 30 days is your training period. And after that, then you start the business. That's the time when you actually start the business. Training can even go further than 1 month. It's not necessary that 1 month is the only uh, set limit for learning everything that is about network marketing. So as now we are taking an example of a building. Don explains this presentation by taking an example of a tall building. Now when we build any building, we must ensure that the foundation has to be very strong. If we have to build a big house or a very tall building, the foundation has to be a lot deeper inside the ground. And till the time the foundation is not strong enough, the building won't last long. And similarly, when we apply this example to our network in MLM, when a person starts, he is digging
the earth with the shovel. That means he is manually working. And when when we teach him how to sponsor people, that is, his upline helps him to sponsor people, he will uh, in our program we take 5 people in our system. So when he has 5 serious people and he teaches those 5 serious people further to teach their 5 people, that means he'll be having 25 people in the organization. So when he was alone, he was digging with the shovel. That means he was manually digging. Now he has 25 people in his organization, and that we term as second level digging. When he is second level, when he is digging at the second level, those 25 people represent a bulldozer in terms of real construction work. So bulldozer will be doing a lot more work than 20 than a single person or a single machine. So a bulldozer can do a lot more work. That means a lot more will be happening in our organization when we will be having 25 people. And so the mantra is teaching. And when we teach those 25 people how to sponsor for the 5 people, we will be having 125 people in the organization. That means we will be digging, then we are 3 level deep in our organization. And when we are 3 level deep, Dawn refers to that 3 level deep as hitting the bedrock. Hitting the bedrock is the most vital aspect in any MLM program. So when we hit the bedrock, then we that represent 125 people in our organization, which further represent to better appliances or better machinery to do the work. Now we have better machinery in the organization to do the work. And when we hit the bedrock, uh, after the bedrock, then the things start getting easier. Then the growth will become more rapid, and then the building will start appearing above the ground. And once the building starts appearing above the ground, the growth will be very, very, very fast. And similarly, when we go 4 level deep, that means 625 people in the organization, the growth accelerates a lot. And when 5 level deep, that means a lot more people, more than 1,000 people in the organization, or around close to 1,000 people in the organization, that then the growth or the money that we will be earning will be very good. And uh, now there comes a question for some people that in some cases we will be not seeing any growth at all initially. Why? Don gives an explanation. He says that when there is for a person who is a new person into network marketing, he might be experiencing very slow growth in his organization due to the fact that his foundation is not strong enough yet. When your foundation is not strong, till that time you won't be seeing any rapid growth in your organization. So it is very vital to dig 3 level deep and hit the bedrock. Only when you hit the bedrock, that's the time your growth will accelerate quite fast. And so one should not get discouraged when there is no growth happening, or the growth is very slow. It just means that the foundation is not strong enough yet. And Don further explains that this is where a salesperson goes wrong. Salesperson only works at 2 levels. He'll try to sponsor a lot more people, and he'll not try to dig deep into the ground. And when he's not digging deep into the ground, he will not have a strong base or a strong foundation. He'll only be working at the superficial level. And at the superficial level, you might experience a little bit growth, or say, let's say, rapid growth at first, but then the growth will taper off. The money that you will be making will taper off in the coming months. Why? Because the people you're sponsoring will drop out, and they'll no more be serious about building a business. So it is very vital that we dig deep, and we just don't focus on sponsoring a lot of people. And as I earlier started, that it is not a race, and till the time our mindset is not a competitive one, but it's a creative one, we will be
we will grow a lot more. If we start comparing ourselves with others, that means we are competing with others, and competitiveness kills creativity, and that's not what we want. We want to have, we want to be creative and innovative in our approach, and uh, we must take one step at a time, and then build the organization. That's it. Thank you. Perfect, Manav. Thank you. Great, Manav. Thank you. Good, Manav. Good. Thank you. Thank you. Very good, Manav. ग्रेट जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया. Well done, Manav. Thanks, Pari. Thank you so much. वैसे इसमें जो मैंने एनालिसिस किया भी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है भी. जैसे सबसे पहले वो वाली डायग्राम है ना, जिसमें बंदा दौड़ रहे होते हैं सभी, तो वो समझ ही लेता है भी यार ये बहुत डिफिकल्ट है भी, इन सब का तो हो गया, ये सभी तो कर चुके हैं और मैं रह गया. जैसे कल वाली जूम कॉल में, परसों वाली में सुमित ने बोल दिया था भाई मैं अभी तक तो आपने सब कुछ कर लिया, तो मैं इन बिटवीन हूँ, अभी तक मैं इतना सीख नहीं पाया. तो सुखी भाई ने उस वेले उन्होंने दोबारा रोक सीखा उत्ते क्या सीखा भी नहीं अजय ਅਸੀਂ दोबारा करांगे इन्हों सब कुछ ना भी अजय ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के क्लियर कर देते हैं भी नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो हम सभी ही सीख रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो इसको दोबारा करेंगे. तो जैसे बंदा स्पॉन्सर होता है पहले ही, सबसे पहले उसका फॉर्म फिल हो जाता है, जहाँ उसको हम किसी ग्रुप में डाल देते हैं, तो वो उसी दिन से समझ लेता है भी मेरा काम शुरू हो गया. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक सो बनती है 3-वे कॉल में, जब हम क्लियर करते हैं, 3-वे कॉल अपलाइन करती है, तो वो उसको बड़ा ही क्लियर कर दे भाई साहब भी हम आपको ये सिखाएंगे, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज का रहेगा, और उसी में ही उसको क्लियर हो जाएगा भी अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ मैंने पहले सीखना है वहां पर जाकर, तो वो डिसपॉइंट नहीं होगा. और दूसरी चीज भी, जो हमारे पास एक पैरामीटर्स बने हैं, हेल्थ कार्ड वाला बना, तो उसको वो दिखाना बहुत जरूरी है भी भाई साहब आपने ये सब कुछ सीखना है अभी, तो सीखने के लिए 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर बन जाती है कि अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के उसको बताए भी जो तेरा ट्रेनिंग पीरियड है, उस ट्रेनिंग पीरियड में स्कोप ऑफ वर्क क्या है, तूने क्या क्या सीखना है. और जैसे जैसे उसमें से वो सीखता जाता है, तो हम उसको क्लियर करते जाते हैं, हाँ भाई तूने ये भी पॉइंट सीख लिया, तूने ये भी सीख लिया, तुमने ये भी सीख लिया. तो फिर वो मतलब कि डिस्करेज नहीं होता, उसको ये नहीं लगता भी मेरा कुछ हो नहीं रहा, उसको लग रहा है भी मेरे पास 20 पॉइंट है, हाँ यार मैंने तो 5 सीख लिए, 6 सीख लिए, 10 सीख लिए, तो मेरा ट्रेनिंग हो रही है. तो वो डाउनलाइन मेरे ख्याल से उसको वो वाली जो डिस्करेज वाली, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है ना, वो नहीं आती. और दूसरा, हम उसके साथ जब बोल देते हैं भी तेरा नेटवर्क तो हम बनाएंगे तेरे साथ जाके, तो 2 काम कर रहे हैं. एक तो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं 20 पॉइंट्स वाला, वो सारा क्लियर कर रहे हैं. दूसरा, उसके साथ 3rd-वे कॉल करके उसका नेटवर्क भी बना रहे हैं, तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी सीख रहा है. तो वो डिस्करेजमेंट वाले काफी एरिया ना वो खत्म हो जाता है. और उसके बाद उसने बड़ा क्लियरली एग्जांपल लिया अपना बिल्डिंग की, टॉल बिल्डिंग की, और उसको एमएलएम के साथ, नेटवर्क के साथ भी कोरिलेट किया. उसने 4 स्टेप ही मेनली इसमें कवर किए हैं. जैसे पहले स्टेप में वो कहता है भी अगर आपने बिल्डिंग बनानी है कोई, तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको पहले फाउंडेशन तैयार करनी है. तो जैसे शुरू में हम उसको खोदते हैं, तो वो स्पेड से या किसी कहीं से खोदते हैं, तो वेरी डिफिकल्ट है.
वो टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट काम भी है। सिमिलरली उसने स्टेप 1 में एमएलएम वाले नेटवर्क में उसको ऐसे कोऑर्डिनेट किया भी जैसे हम पहले अपने 5 सीरियस पर्सन को ढूंढते हैं, तो वो उतना ही डिफिकल्ट है, हमको 5, 10, 15, 20 बंदों में से निकलना पड़ता है। तो जैसे हमारे पास 5 सीरियस पर्सन आ जाते हैं, तो दूसरी साइड पे बिल्डिंग की एग्जांपल लेता है भी हमने खुदाई जो हाथ से करनी थी, उतना ही डिफिकल्ट काम हम कर चुके हैं। दूसरे स्टेप में वो कहता है भी अब हम बुलडोजर से काम करेंगे। तो इसमें वो बताता है भी जैसे हमारे पास 5 बंदे हो गए सीरियस, तो उनको पाँचों को ये सिखाएँगे भी उन्होंने आगे पाँचों को कैसे सिखाना है। तो हमारे पास 25% जो सीखने के लिए हो जाएँगे हाउ टू स्पॉन्सर। तो वहाँ पर 25 बंदे स्पॉन्सर सीखने ये सीख रहे हैं। तो अगर 25 बंदे सीख रहे हैं, तो वो हमारा काम एक तरीके से बुलडोज़र की तरह हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में उसने कहा भी अब जब बुलडोज़र का काम खत्म हो गया, तो वो क्रेन से काम करते हैं, तो काम बहुत ही फास्ट और रैपिडली हो जाता है। और उस केस में उसने बताया भी जब आपके पास अब 25 बंदे हैं, 25 बंदे 5-5 बंदों को सिखाना शुरू करेंगे नीचे, तो 125 बंदे ये सीख रहे हैं हाउ टू स्पॉन्सर। तो वो काम क्रेन की तरह ही हो गया। तो 125 बंदे अगर 1 हफ्ते में एक बंदा एक 45 प्रेजेंटेशन करता है, तो कितनी 45 होगी? 125 45 होगी। तो वो काम एक तरीके से क्रेन की तरह बहुत फास्ट चल रहा है। तो उसके बाद उसने बोला भी 4th स्टेप में जाकर जब क्रेन से काम होता है, आपको बेडरॉक मिल जाता है, तो आपकी बिल्डिंग विजिबल होती है। इसी तरीके से जब आप उससे कोरिलेट किया उसको नेटवर्क से, जैसे आप 4 लेवल डीप चले जाते हो, तब आपकी बिल्डिंग दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको पता लग जाता है मतलब उसमें नेटवर्क 4 लेवल डीप तक बेडरॉक आपको मिल जाता है। सो अगर आप बिजनेस में को काफी महीने तक कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा, तो डोंट डिस्करेज। उसमें उसने बताया डिस्करेज होने की कोई लोड़ नहीं है। सो कोरिलेशन बहुत बढ़िया की है उसने बिल्डिंग की और इसकी नेटवर्क की। और उसके साथ जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, वो मेन है भी उस बंदे को पहले हम बता दें भाई साहब आप ट्रेनिंग में हो, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, आपने अभी सीख रहे हैं। और जैसे ही वो पॉइंट में वैलिडेट हो जाता है, उसको पता लग रहा है भी हाँ भाई मैं इतने पॉइंट सीख गया, अब इतना ही रह गया, अब इतना ही रह गया बस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you, Baji. In this presentation, the message is very clear that the more deeper you go, the more secure you are. That likewise, he has compared the our organization with an tall building. जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। तो जितना ज्यादा हमारा डेप्थ होगा, जितना ज्यादा हम लोग अपनी डेप्थ को ड्राइव करेंगे with a proper width, it will be a strong business and monetary benefits will be very good. Yeah. डेफिनेटली भाई, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग चाहते हैं हमें, उतना ही डेप्थ में काम करना चाहिए। हमें पता लग जाएगा अभी कितना नीचे जाना है, और विड्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। Correct. तो सेल्समैन वाली एग्जांपल भी उसने यहाँ पर ही ऐसे क्लियर कर दी भी जैसे सेल्समैन वही है जो नीचे तक नहीं जाता और मतलब के विड्थ में ही काम करता रहता। तो दोनों दोनों की ही इम्पोर्टेंस बताई है, कैसे कैसे किसकी इम्पोर्टेंस है। तो डेप्थ Yes, में yes, भी yes. जरूरी है और विड्थ में भी जरूरी है। यस। जैसे जो कमजोर बिल्डिंग होती है ना, आज सुबह मैं मानव से बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि जो कमजोर बिल्डिंग होती है जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, उसको हल्की सी भी हवा आएगी, आंधी आएगी तो वो ले जाएगी। ऐसे ही जो भी नया फ्रेंड, नया दोस्त हमारा इस बिजनेस में आता है, वी हैव टू प्रोटेक्ट हिम एज ए अपलाइन। वी शुड टीच हिम, वी शुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑल दीज सो कॉल्ड, है ना, आंधियां, रिश्तेदार, समाज जो खींचते हैं, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। We should protect him and it's our responsibility as a upline to at least take him 2-3 deep so that his foundation is strong और वो फिर एक strong building की तरह खड़ा होना शुरू हो जाए। जी 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 जी।
उसको जैसे ही डेप्थ में लेकर जाना शुरू कर दें तो उसका जैसे मोटिवेशन वाला चैप्टर है, उसकी मोटिवेशन खुद बढ़ती रहती है। तो फिर उसका मतलब कि जो वाली सिचुएशन नहीं आती, कभी भी उसका एटीट्यूड नीचे नहीं होता। तो वो जो रिश्तेदार, फियर ऑफ जो रिजेक्शंस है वो खुद ही कम हो जाते हैं। अगर उसके डीप में नहीं जाएंगे, उसको जितना मर्जी मोटिवेट करते रहो ऊपर से सन की तरह, तो वो तो वहां पर ही पड़ा रहेगा, वो उसको कर नहीं सकते। सो द मॉरल इज कि उसको डीप में लेकर जाना ही जरूरी है। उसके नीचे कैंडल लिट करना, डाउनलाइन में स्पॉन्सरशिप करना, डाउनलाइन लगाना ही उसके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। उसी से ही वो इंस्पायर होगा। और जितना मर्जी हम उसको बोलते रहे भी ये कर लो, जितना मर्जी ज्ञान देते रहे, उसका उस पे असर नहीं होगा। नो डाउट भी वो चीजें कैटर करती हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन मेन फंडा वही है। जितना डीप जाएंगे उतना उसको इस नेटवर्क में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और इसमें फेथ भी होगा। यार मेरे साथ जाके मेरे लिए बंदा मेरे नेटवर्क में नीचे मेरा नेटवर्क बन रहा है, जब वो मेरा मेरा होगा तो उसको पता लगेगा। तो डेप्थ डेप्थ में जाना जरूरी है। तो अगर डेप्थ में नहीं जाएंगे तो वो डिफिकल्ट है। थैंक यू पाजी। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। जब मैं इस बिजनेस को अच्छे से देख रहा हूँ और मैं अपनी प्रेजेंटेशंस को काफ़ी समय से समझ रहा हूँ, तो मुझे एक और भी थॉट आ रहा है कि जैसे कोई एक फार्मर होता है, वो एक सपना लेकर एक बीज डालता है ज़मीन में। तो वो नहीं देखता है कि मुझे कल फ्रूट मिल जाएगा। उसको पता है कि उसमें समय जाता है, उसको पानी देना है उसको, और उसमें और वो हर रोज जाके चेक नहीं करता है कि क्या हुआ क्या हुआ। उसका एक विश्वास होता है कि ये जो बीज है ये कल बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ से बहुत फल आने वाले हैं। तो वो सपना लेकर के बीज डालता है। तो जब एक फार्मर डिस्करेज होता है तो उसको सिंपल सी एक बात ये बताई जाती है कि भाई पहली बात, तेरा फार्मर वाला माइंडसेट है कि तू वाकई कल बेनिफिट लेना चाहता है, या फिर तू ये देखना चाहता है कि ये बहुत बड़ा पेड़, तो कितना सारे फल मिल सकते हैं, कितने हजारों फल, मिलियंस फल मिल सकते हैं, वो देख रहा है तो सपना। या फिर तू ये देख रहा है कि कल पैसे आ जाए। तो फार्मर मत कर, तू फार्मिंग मत कर, तू कुछ और काम कर ले। तो ये मैं इसको देखता हूँ कि डिस्करेजमेंट का जो फीलिंग आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है। और एमएलएम एक ऐसा बिजनेस है जिसकी कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है, जो इस एनालॉजी में भी बताया, बुक में भी बताया कि यू डोंट हैव टू कैच अप विद समवन, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क। एंड सबसे बढ़िया जो चीज है एमएलएम में कि हमारे पास इस एमएलएम के करने के तरीके में, इस सिस्टम में हमारे को बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हमारे को सपोर्ट अवेलेबल है, हमारे पास टीम अवेलेबल है, हमारे पास अपलाइंस अवेलेबल है, हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, विजडम अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स अभी भी हैं और बनते जा रहे हैं एज एंड व्हेन वी आर इवॉल्विंग। तो हमारे को कोई डिस्करेजमेंट का सवाल ही होना नहीं चाहिए कि हम कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे को पूरा का पूरा सपोर्ट है। यस, ऑल द थिंग दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग, वी हैव टू कमिट आवरसेल्व्स, यस आई एम इन दिस ट्रेनिंग। सो अगर वो फीलिंग है, उस फीलिंग से हम अगर एमएलएम का बिजनेस कर रहे हैं, तो देयर इज नो वे कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ इस ट्रेनिंग में प्रेजेंट होना है। इनफैक्ट अगर आज भी जूम कॉल में सिर्फ हम प्रेजेंट ही होते हैं तो अपने आप आपको लगेगा कि कुछ अंदर जा रहा है, और वो कुछ अंदर जाते जाते आप कुछ सीख रहे हो, और सीखते सीखते आपको आपके अंदर कुछ एक नया थॉट भी ट्रिगर हो रहा है। बिकॉज अभी जैसे मैं आपके साथ अभी भी मैं सुन रहा था प्रेजेंटेशन, तो कुछ नया ही चीज मेरे पास आ रही। तो यू नो आई एम आल्सो लर्निंग एज आई एम ग्रोइंग। सो इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग मंथ में रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम रेडी नहीं होते तब तक हम अपने बिजनेस को काउंट नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट सीरियस अबाउट, अंटिल वी आर सीरियस अबाउट द बिजनेस वी शुड नॉट काउंट दैट वी हैव स्टार्टेड डूइंग आवर बिजनेस। हम जब हम कर सीरियस हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, तब हाँ यस हमारा बिजनेस शुरू हुआ है। मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज और भी लगी इस एनालॉजी के साथ कि जब हम जापानीज कल्चर को देखते हैं, आई डोंट नो वेदर इट साउंड्स और नॉट, बट मेरे दिमाग में आ रहा, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे
कि जब जापानीज को जब देखा गया कि जापानीज जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो अर्थ को एक जोन कहलाया जाता है, तो उनके पास स्पेस भी कम है और साथ में वो अर्थक्वेक जोन्स भी बहुत सारे। तो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपनी बिल्डिंग्स को सस्टेनेबल तरीके से रखना है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में काम करना है, यानी कि मेरे को बिल्डिंग जो है ऊंची ज़्यादा बनानी है, इसका मतलब डेप्थ में ज़्यादा काम करना चाहिए। तो इन वन ऑफ द 3 कॉल्स मैंने देखा था, सुखी किसी से बात कर रहे थे, मेरे किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे थे, आई डोंट नो यहाँ पर भी होंगे कोई वो, तो वो बुर्ज खलीफा की बात कर रहे थे कि अगर आपको बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनानी है तो आपको उतना ही डीप काम करना पड़ेगा। और डीप काम करने का मतलब ये है कि यस यू हैव टू टीच, यू स्पॉन्सर, यू देन टीच, यू देन अगेन स्पॉन्सर, यू देन टीच, यू टीच हाउ टू स्पॉन्सर, यू देन टीच हाउ टू टीच। तो जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे उतनी बड़ी बिल्डिंग आपको बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग नजर आनी शुरू हो जाएगी। और लेकिन होता क्या है कि जो सेल्समैन वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि जब कुछ सक्सेस मिलने वाली होती है, जरा सा कुछ, बेसिकली वो कॉन्शियसली है नहीं जाते हैं इस सिस्टम में जाके, लेकिन कुछ ना कुछ वो करना शुरू करते हैं, जरा से सक्सेस मिलनी शुरू होती है तो वहीं पे जाके वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब तक आपको सक्सेस अगर नहीं मिल रही है, अगर लगता है कि जो सोच के आप आए, हालांकि सक्सेस के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो प्रोग्रेसिव सक्सेस की बात करते, तो सोच के आए हो, तो सिंपली बात है कि आपको ये देखना चाहिए कि हम इस सिस्टम में कहाँ खड़े हैं, मेरा बेंचमार्क है, मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी सिर्फ खोदना शुरू किया है या मैंने अभी खोद के नीचे आना शुरू किया है। तो मैं इस एनालॉजी को ये देखता हूँ कि आप किस स्टेज पे हैं, अगर आपने सिर्फ खोदना शुरू किया या आपने सिर्फ स्पॉन्सर करना शुरू किया है। आपने अगर सिखाना शुरू किया है कि कैसे स्पॉन्सर करना है तो आप फर्स्ट लेवल डीप या सेकंड लेवल डीप तक जा रहे हैं। अगर आप बहुत थर्ड लेवल डीप या फोर्थ लेवल तक डीप जाते हैं, तो जब आपको लगता है कि यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, माय बिल्डिंग इज राइजिंग, मनी इज कमिंग, सब कुछ हो रहा है, तो समझ जाओ कि यस अब आपने 4 लेवल डीप में काम कर लिया। और आप उसको देख भी सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ any system. When we have a system, there is a standardized approach to see where am I right now. अगर सिस्टम नहीं होता है तो फिर हम हमेशा अपने हिसाब से चलते रहते हैं जिसका कोई अप्रोच नहीं होती है। तो यस वी हैव टू सी दैट वेयर आर वी राइट नाउ। सो अगर हम सिस्टमैटिक चलते हैं, अगर सेल्समैन अप्रोच नहीं रखते हैं तो हमारी बिल्डिंग डीप जाती है, कभी क्रम्बल नहीं होगी, अनलाइक सेल्स पीपल वालों की बिल्डिंग जो कि 130 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, 130 फीट चौड़ी बना देते हैं, लंबी बना देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, लेकिन डेप्थ नहीं जाते हैं, तो सॉफ्ट ग्राउंड में रहते हैं, तो वो उनकी बिल्डिंग क्रम्बल होने ही वाली है, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। तो इसमें डॉन एक और बात भी कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट गियर में, अगर आप गाड़ी की एनालॉजी से भी देखते हो लास्ट चैप्टर के हिसाब से, तो फर्स्ट गियर में अगर आप बहुत ज्यादा बार गाड़ी में रहते हो तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी का इंजन भी खराब होने ही वाला है, आपकी गाड़ी भी खराब होने वाली है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइम्स दैट यू हैव टू बी इन द फर्स्ट गियर, नॉट मोर देन 5 times. So learn the napkin presentation, use them, and you will never get insecure, you will never feel that मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, और bedrock तक जाते रहो, सीखते सीखते जाते रहो, the success will definitely be yours. That's all from my side. Thank you. थैंक्स विनोद जी। माय अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर से, क्योंकि डॉन ना डिस्करेजमेंट से इसको स्टार्ट कर रहा है चैप्टर को। मतलब डिस्करेजमेंट का मतलब होता है निराशा, हताश। तो क्यों हो सकता है आदमी निराश? क्योंकि पहली चार प्रेजेंटेशन देखने के बाद आदमी बिजनेस में जैसे ही आता है तो वो दिन गिनने शुरू कर देता है कि मुझे कितने दिन हो गए, कितनी देर हो गई मुझे स्टार्ट करेगी। तो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग हिज ट्रेनिंग मंथ, वो स्टार्टिंग मंथ काउंट कर लेता है कि मैंने आज से शुरू कर। और हमने अगर उसको सही हेड स्टार्ट देना है तो वो पिक्चर्स के साथ, जो पहले पेज पे ये पिक्चर, उसमें वो दिखा रहा है कि एक बंदा सबसे तेज दौड़ रहा है, फिर कुछ बंदे उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और तीसरा जो नया बंदा वो आगे देख रहा है मेरे से तो ये इतना आगे है। तो यहाँ पे उसके मन में डिस्करेजमेंट आती, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया यार, सारे ही स्पॉन्सर हो गए, ये तो सारे ही कर रहे हैं, मैं तो पीछे रह गया, अब तो बहुत लेट हो गए। लेकिन जब हम उसको समझाते हैं धीरे धीरे बिजनेस के बारे में, तो उसको
जब ये पता लगता है कि इस बिजनेस की कोई फिनिश लाइन नहीं है, इस रेस की कोई फिनिश लाइन नहीं है, इसमें सिर्फ वही लूज करेगा जो क्विट करेगा, जो सीखता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हमने उसकी कमिटमेंट के साथ, हमने उसके साथ बैठ के ये डिसाइड करना है कि इतनी देर तक उसका जो है वो ट्रेनिंग मंथ रहेगा। जैसे हमने 90 डेज, मतलब हमारी टीम का जो ट्रेनिंग पीरियड है दैट इज 3 मंथ्स, प्रोबेबली 3 मंथ हमने डिसाइड किया है। तो पहले 3 मंथ वो ट्रेनिंग में रहेगा और उसके बाद वो स्टार्ट करेगा इस फेज को। तो इन बिटवीन और डिस्करेजमेंट ना हो तो हम उसको ये प्रेजेंटेशन समझाते हैं और उसके साथ हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो काम करने के लिए कब तक काम करना है, जो इस प्रेजेंटेशन की अगली चीज आती है कि जब तक उसका बेड रॉक ना आ जाए। क्योंकि किसी भी बड़ी बिल्डिंग को की फाउंडेशन हम कब तक खोदते हैं, तब तक उतनी गहराई में जाते हैं जहां तक बेड रॉक क्या होता है, जहाँ पे बहुत सख्त जमीन आ जाती है, जहां से हम फाउंडेशन ले करके ऊपर बिल्डिंग ले जाना शुरू कर देते हैं। बेड रॉक पे फाउंडेशन ले करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम बेड रॉक के ऊपर फाउंडेशन ले नहीं करेंगे तो जब भी हम अपनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो वो बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। तो उसको अगला चीज समझानी है कि हमने बेड रॉक तक लेके जानी है, लेकिन साथ ही साथ ये समझाना है कि अगर हम पहले जैसे शुरू करेंगे तो बेड रॉक पे अकेले होंगे। जैसे आप अकेले खोदना शुरू करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप फावड़ा लेके खोद रहे हो। जैसे ही आपने 5 बंदों को स्पॉन्सर किया तो 5 बंदे ढूंढते हुए आपका ज्यादा जोर लगेगा, क्योंकि आप अकेले हो। और जैसे एक अकेला मजदूर कहीं के साथ खोद रहा है फाउंडेशन, वैसे ही जोर लगेगा तकरीबन। जैसे ही 5 बंदे आए और आपने आगे 5-5 को डुप्लीकेट किया, 5-5 और बंदे स्पॉन्सर करे, तो आपकी स्पीड जो है एक बुलडोजर की तरह हो जाती है। और जैसे ही आप एक लेवल और डीप जाते हो तो वो एक क्रेन की तरह, जैसे एक क्रेन की शक्ति होती है, जितनी तेजी से क्रेन खोदती है वैसे आप अपनी बेड रॉक की तरफ जा रहे हो। और 3 लेवल डीप जाते ही आ, तीन लेवल डीप जाते ही आपका जो है, आपको वो फाउंडेशन आपकी बड़ी नीचे जाएगी। जैसे ही आप 4 से 5 डीप चले जाते हो 1 लाख में, तो वो उसको हम बोल सकते हैं कि अब बेड रॉक आ गया है और वहां से हम अपनी बिल्डिंग ऊंची बनानी शुरू करते हैं। दूसरा, ये बिल्डिंग की एग्जांपल उसने इसलिए भी कोट की है क्योंकि काफी ज्यादा समय चला जाता है जब कोई बड़ी बिल्डिंग बननी होती है, जब हम उसकी नींव खोदते हैं और नींव में काम करते हैं। मतलब तब तक कुछ भी नहीं दिखता, आसपास के लोगों को भी नहीं दिखता कि यहाँ पे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या बनेगा। बनना तभी दिखाई देगा जब फाउंडेशन ले होके फाउंडेशन धरती से बाहर आनी स्टार्ट हो। और जैसे ही आपकी जो बिल्डिंग है वो फाउंडेशन बाहर आई, फिर दिनों में पता चलता है, फिर बड़ी तेजी से वो बिल्डिंग ऊपर की तरफ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एग्जांपल है, एक आदमी को थोड़ा सा धैर्यपन लाती है। उसके मतलब जो तेजी होती है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो थोड़ा धैर्य के साथ काम करता है। दूसरी जो एग्जांपल उन्होंने समझाई 130 वाइड जाके, वो वैसे भी जा सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप बेड रॉक तक नहीं जाओगे कभी। और बेड रॉक तक नहीं जाओगे तो ऊपर आप मंजिल बनाओगे तो वो कभी भी collapse हो सकती है। तो हमने आगे की प्रेजेंटेशन समझाने से पहले पिछली 4 प्रेजेंटेशन आदमी को रटा देनी है, ताकि तभी उसको ये जो डीप बिल्डिंग डेप्थ का जो इम्पोर्टेंस तभी समझ आएगी, क्योंकि हम उसको पहली 4 प्रेजेंटेशन जब समझा देंगे तो उसको सारा पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है, कैसे डीप जाना है, क्या काम नहीं करना। एक गाड़ी की एग्जांपल दे के हम समझाएंगे कि बिजनेस को कैसे करना है। उसके बाद उसको ये डीप जो बिल्डिंग डेप्थ की भी एनालॉजी है, इस यहाँ से समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाजी। सो थोड़ा सा एक पॉइंट मेरा भी है इसमें, जैसे अभी परमीत भाई ने दसिया भाई
हम उसको 3 मंथ्स तक 19 डेज तक उसको ट्रेनिंग में रखेंगे, उसको सिखाएंगे। विनय भाई ने भी किया, मैं भी किया उसने भी, उसको सिखाएंगे कैसे करना है और डिस्करेजमेंट नहीं लानी। हम आपको सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप सीखो पहले। उसके साथ साथ मुझे लगता है भी ये जो सभी पॉइंट है ये डाउन मोटिवेशन वाले हैं, तो उसके साथ अप मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। हम उसको बता तो रहे हैं भी, आप 5 स्पॉन्सर करोगे, कई से काम कर रहे हो, फिर उसके साथ बुलडोजर के से काम कर रहे हो, फिर उसके साथ क्रेन आ गई है, तो हमें जो डिस्करेजमेंट को मेनली रिमूव करने के लिए उसको अप मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आइदर वो वेट करे भी कब मेरे 3 महीने खत्म हो, 90 डेज खत्म हो, तो उसके बाद मैं जाऊं। तो जैसे आज हमने शुरू किया इसमें भाई डाउनलाइन से नंबर लेकर उसके लिए नेटवर्क बनाना शुरू करेगी अपलाइन, तो वो एक अप मोटिवेशन है। तो वो मेनली आई थिंक सो भी अगर वो चलेगी साथ ही साथ में, तो उसका डिस्करेजमेंट वाला जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। सो हमें उसके लिए 19 डेज तक उसको ये नहीं बोलना भी, मतलब जो मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग भी, उसको आप सीखो पहले, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे ये 20 पॉइंट कवर करो, ये सब कुछ करो, तो वो ठीक है। उसके साथ साथ हमें अप मोटिवेशन है जो जो उसके नीचे स्पॉन्सरिंग है वो भी शुरू कर देनी चाहिए। तो जैसे उसके नीचे डाउनलाइन साथ बाय साथ हमारी अपलाइन की हेल्प से हम टीच करके उसे ऑन जॉब ट्रेनिंग में उसके लिए डाउनलाइन में काम करते हैं, विद इन ए मंथ उसके नीचे 1-2 जैसे डाउनलाइंस लग जाती है, तो उसका जो मोराल है, उसकी जो डिस्करेजमेंट वाली वो प्रॉब्लम या वो वाली चांस आता ही नहीं है। तो हमें दोनों को ही साथ पे साथ चलना है, अप मोटिवेशन एज वेल एज डाउन मोटिवेशन। डाउन मोटिवेशन इज नेसेसरी, ये ठीक है, बट इट्स नॉट सफिशिएंट। ये सफिशिएंट नहीं है, इट्स रिक्वायर्ड आल्सो। हमें साथ ही साथ अप मोटिवेशन पे भी काम करना है। अब जैसे कोई बंदा हमने ले आए तो उसको ये टीच करना शुरू कर दे, भाई साहब आप आ जाओ, आप व्हाट्सएप में शुरू हो जाओ, जूम पे आ जाओ, सब कुछ करो, ठीक है, वो कर रहा है। तो जैसे ही उसके साथ हमने बोला भी भाई साहब आप अपनी लिस्ट निकालो, अब आपके लिए हम काम करेंगे और आपका नेटवर्क बनाएंगे, तो जैसे ही वो लिस्ट देता है आपको, तो उसके नीचे एक बंदा आ जाता है, तो वो उसको ज्यादा इंस्पायर करता है। जूम में तो वो लगा ही रहा है, जूम लगा रहा है, वो व्हाट्सएप में कर रहा है, उसको सिखा भी रहे हैं सब। तो वो वाली जो बुलडोजर वाली स्टोरी है या स्पेड वाली स्टोरी है ना, वो उसको असल में प्रैक्टिकली पता लगता है भी हाँ यार ये मेरे साथ काम कर रहा है जाके फील्ड में, तो मेरे नीचे एक बंदा आ गया, मेरा नेटवर्क शुरू हो गया। तो जब मेरा नेटवर्क शुरू हो गया तो उसको इंस्पिरेशन आती है, तो उसका जो मोराल है, उसके प्रैक्टिकली जो हम उसको बता रहे हैं वो समझ लग जाता है। आई थिंक सो भी दोनों मोटिवेशन से पैरेलल चलनी चाहिए। एग्री गुरमर बाजी, पर हम तो तभी स्टार्ट कर, मतलब देयर आर टू थिंग्स ना, अपलाइन एंड डाउनलाइन, है ना। जैसे आपने, जी मैंने एक बंदा स्पॉन्सर किया तो मैं उस बंदे को ट्रेनिंग में डालूंगा, लेकिन उसके साथ जो प्रैक्टिकल काम करना वो साथ ही स्टार्ट कर दूंगा। तो मतलब नेक्स्ट डे से वी कैन स्टार्ट, वी विल नॉट वेट फॉर 90 डेफिनेटली days, डेफिनेटली we will डेफिनेटली, teach मैं भी him वही for कर। 90 days, but we can work, यस मतलब that is my responsibility as a sponsor यस, वो to अप teach अप him and अप build his मोटिवेशन आ गई network। ना। यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो वो मतलब उसमें उसको उसके हमने 90 डिस्करेजमेंट डे, के उसके उसको हमने 90 डेज के ट्रेनिंग पीरियड में डाल दिया, ये उसका जॉब वर्क हो, उसके साथ काम करके उसकी डेप्थ बिल्ड करना, ये मेरा मेरा जॉब वर्क है। यही कह रहे हो ना। यस यस यस, तो हम हाँ, तो वो तो उसको हम कर ही इंस्टेड ऑफ देते के हैं। डाउन, हाँ नहीं, इंस्टेड वो ऑफ भी वो वी विल नॉट वेट के वो 90 दिन तक सीख के फिर काम यस उसका करना यस स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको हम ट्रेनिंग में डाल होता। देंगे, लेकिन उसका नेटवर्क बिल्ड करने की मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो अगले दिन से भी काम करना स्टार्ट कर सकते यस होता होता इन प्रैक्टिकल होता है ऐसे। ये भी अभी तू आ गया, अभी तुझे सिखाना शुरू करेंगे भाई, अभी तू सीख, तो डाउनलाइन को काम देना शुरू हो जाता है ना। हैं। डाउनलाइन को बिल्कुल काम दे दिया, जे तेरे 20 पॉइंट है, 20 पॉइंटों पे शुरू हो जा, जे तूने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, तो हाँ पैरेलली वो अपलाइन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहीं ना कहीं रह जाती है, तो उसको भी पैरेलली शुरू करना है। तो मेरा यही कंसर्न था। बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब डाउनलाइन की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, अपलाइन की भी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी दिन से आ जाती है उसके नेटवर्क को बिल्ड उसी करने दिन की। से आए थे, डेफिनेटली हाँ उसी तो दिन से आ जाते। मतलब ही विल लर्न एंड वी विल डू द प्रैक्टिकल, क्योंकि हम टीच कर चुके हैं। जी, बहुत बहुत जरूरी।
both saying the same thing. Yes, coach. We are agree with each other, Paji. ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਭਰਾ। ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ जितनी देर फाउंडेशन बनेगी ना उतनी देर बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी। तो जितनी देर फाउंडेशन वर्क होएगा उतनी देर बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी, पर फाउंडेशन तो बिना बिल्डिंग स्टेबल नहीं होगी। सो इस करके फाउंडेशन बनानी जरूरी है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਨ ਟਾਈਮ। once the foundation is properly laid, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ this one ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, it's always it can be taken higher and higher, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। so it can always go on the top, whereas if there is no foundation here proper, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ sand ਹੈ, it's all sand, so bedrock ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਆ ਥੱਲੇ bedrock ਹੈ, so ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰਾ sand ਹੈ। So if the building is not touching the bedrock, there is no connection. If there is no connection, then it can always collapse, which is what happens. So even if the salesman somehow succeeds in taking the building high, I mean he sponsors too many people, but as soon as there is some earthquake, this building will fall. But this building will always stay because it has a foundation नीचे। इदा खसका लाते ने, पहला 13 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 9 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾते, ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਪਿਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪਿਲਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਪਿਲਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। that has to be reminded, it's always like V shape, ulta V shape. So you can't if you try to build a pillar like this, fair building gir jayegi. So this is the science. That's why you have to think about going wide first, properly wide, and then take the building up. Us to baad edi badni sari badni shuru hoti. So if we neglect this, like here, so the building can fall any day. So this is what a salesperson does. This is what a teacher does. So fair uda bhi age step by step hai. You cannot immediately go to the bedrock in one day. It takes time. So you gradually do the first step, then you do second step, third step, and fourth step. So at least when you 4 deep, then you find the bedrock. Utho di fir laying start ho. So us to baad fir jadon bedrock lab gaya, fir us to baad thalle digging nahi hundi. You don't need digging below to see personally. So it starts going backwards. So it starts constructing outwards. Fir bahar aana shuru ho jata.
सो पहली मंजिल थोड़ी टफ बनती है, दूजी छेती बनती है, फिर तीजी बनती है, फिर चौथी बनती है, फिर पंजवीं बनती है, फिर छेवीं बनती है, फिर सत्तवीं बनती है, फिर इट गोज क्विकर, वो छेती पढ़ना शुरू। सो ओनली द मेन जॉब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हैपन्स मोस्ट जोर ਇੱਥੇ तक लगता है इस एरिया ਦਾ। सो पहला थल्ले ਨੂੰ, फिर ਇੱਥੇ तक जोर लगेगा, फिर उस तो बाद ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। सो इट विल कीप ऑन जस्ट लाइक विदाउट मच एफर्ट द बिल्डिंग विल गो ऑन। सो people miss to understand that ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਸੋ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। that's wrong, that won't work। so you have to go ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ। so direction is always ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਈ। so most MLM businesses ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹੈ they fail to teach this point। they do know ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਮਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर द ਡਾਊਨਲਾਈਨ। ਇਹ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵਿਡਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰੀਡ ਸੈਟਸ ਇਨ, ਸੋ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਦਿਸ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ इनको छोड़ यार, ये सीरियस नहीं लग रहे अभी, तू अपना काम कर। कहते नहीं अक्सर तू उसको छोड़, इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ, तू छोड़ इनको, तू अपना काम कर, इनको छोड़ दे। तो कंफ्यूज रहता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई दिस प्रेजेंटेशन, दैट इज व्हाई दिस बुक, और ताकि सबको प्रेजेंटेशन आ जाए और अपने हिसाब से अपने बिजनेस को डिजाइन करें। बट टेक्निकली इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू बिल्ड द फाउंडेशन प्रॉपरली। किसी के लिए काम करो, पहले जब काम करोगे फिर इट विल पुश अप, फिर आपको इसके फ्रूट्स आएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। यहाँ पर इस आदमी ने किसी के लिए काम नहीं किया, अपने लिए काम किया, लेकिन इसके बिल्डिंग के गिरने के चांस 100% है। बिकॉज उसको कोई भी टीम सपोर्ट नहीं है, उसके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं है, उसके पास there's no, he's simple alone, a lonely man। he thinks जो लोग उसके साथ हैं वो उसके हैं, लेकिन वो उसके नहीं है। वो उसके तभी होंगे जब वो उनके लिए काम करेगा, और उनके लिए काम करने का मतलब है कि that you have to help them that they can sponsor someone। but यहाँ पर इस आदमी ने इन लोगों की हेल्प की है, तो he is not alone, he has a big team। तो कोई भी आंधी तूफान आएगा इसकी लाइफ में, the team will come together, they will stand together। it's a very odd example here, but somehow जब कभी भी something happens in a multi-level marketing business, that some distributor loses his life, or accident happens, or is gunshot, कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर उसने यहाँ पर नीचे काम किया हुआ है पहले, और इसको अगर कुछ हो जाता है, so the whole team comes together and they start building very very fast, they get very crazy। फिर वो फटाफट बिल्ड करना कर देते हैं शुरू, because they want to support that widow or they want to support that family। so ये बिल्डिंग बहुत तेज ऊपर जाती है, even though this person is no more, but still the bad times में this kind of psychology works very well। I don't say this should happen, but somehow we have seen that in the history, anywhere when such thing happened, the team came together and all the cross lines, up lines, down lines, they started working this business, and उस business को उन्होंने फटाफट एक रेजिडुअल इनकम तक पहुंचा दिया ताकि उस फैमिली को इनकम आती रहे, इसकी इनकम जो है रिप्लेस हो सके। That's why multi-level marketing।
So any emergency comes, multi-level will be very. That is why अभी से ही from day one we have to have that team spirit. कि अभी से ही हम एक दूसरे को जाने और एक दूसरे के साथ इतना हमारा connection बन जाए कि whenever there is some emergency or requirement, so the team can stand together. तो हम एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकें. ये ना हो गया यार इधर कौन करना उधर करना, because everybody is going to win here, so it's a win-win situation. So that's why building a foundation is always better, because you have lot of people in the organization यहाँ पर नीचे जाके जो आपकी support करते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर all full of people. ये चीजें कंपनी नहीं आपको देगी, इसीलिए we do not talk much about the company, because ये आपका personal effort है. This is your personal effort. To make a team is your personal effort. So इसीलिए personal effort को हमें सीखना पड़ता है. The team is your personal effort. The company is not going to provide you the team. Companies only provide you the money if you have a huge team attached to the company because of you. So वो team effort का जो काम है उसका जो पैसा आपको कंपनी देगी, लेकिन ये टीम आपको अपने लिए खुद बनानी है. That will not be given by the team, so also by the company. So you have to be हमारी जो एकता है, जो हमारी oneness है, that is much stronger than the company. Because कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने इतना पैसा कमाया है कि उन्होंने मिलजुल के एक अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी भी खोल ली है, because of some clashes हो जाते हैं कंपनी के साथ. So all possibilities, the organization will come up and help you. So ये आपका organization है. So that is why, as I told you, that it has to be created with much love. So without love, that's not possible. So you have to really put in the real love in it. And अगर प्यार नहीं है तो organization इकट्ठी नहीं होगी. इसको इकट्ठा रखना है with love. So that is why we work for one another and build businesses. अगर आप just add this word in your dictionary while building this organization, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे. Thank you so much. Over to you guys. Thank you, Manav. It was a nice presentation. Really well done. I hope he's there. Really well done. Even timely also and detailed was good. The main thing is you have to understand why we do this presentation and why because it's a self-motivator, so we have to understand that कभी भी हम चूके नहीं foundation create करने में. So it may, if it takes you more time to build a foundation, no worries, because still you're working it in the right way. कई बार greed आ जाता है, कई बार कोई आदमी ऐसा आ जाता है जो बहुत सारे contacts लाता है, बहुत सारा पैसा उसके पास होता है, वो कहता है ये मेरे पास पैसा है. गुरमर के भी एक नेबर हैं, उनको भी एक बार शुरू में लाए थे वो, तो उन्होंने मेरे को पहली कफे में बैठे मिले तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को आपका जो 2 साल का काम है मुझे 6 महीने में करना है. दिखाई नहीं दिए. उसके बाद एक ही बार उन्होंने मेरे से सवाल पूछा था, फिर नजर नहीं आए वो कहाँ गए. तो मेरे 2 साल का काम वो 6 महीने में करना चाहते थे, एज इफ मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो. सो आई सेड 2 साल को 2 साल लगते हैं भाई, और 6 को 6 लगते हैं. आपका 1 महीना निकल चुका, आपके पास 5 ही रह गए हैं. तो उसके बाद वो नजर नहीं आए. कभी मिले गुरमर तो मेरी तरफ से नमस्ते कह देना. ठीक है जी. तो लॉकडाउन है, नजदीकी मिलते होंगे आप. हाँ जी हाँ जी. सो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं करता हूँ आप नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जितनी टाइम मेरे को लगा उतना आपको लगे, लेकिन वो आप पे ही डिपेंड करेगा कि कितनी फास्ट आप इसको लेके चलते हो. और जितनी फास्ट आप इसको इमीडिएटली पहले मंथ में ले जाओगे, उसकी आपको एडवांटेज और लेवरेज बाद में जाके बहुत तेजी से मिलने वाली है. सो नाउ यू हैव द होल टीम टुगेदर. अभी टीम भी बिल्कुल स्प्राउटिंग स्टेज पे है. आई वुड कॉल इट स्प्राउटिंग. अगर शूट्स निकल गए, अगर स्टेम निकल गया और शूट्स निकल गए, फिर
ये टीम इकट्ठी नहीं कर पाओगे, ये सब अपने अपनी जगह बिजी हो जाएंगे, दे विल बी हर 15 मिनट लेने एक्सपेंसिव हो जाएंगे इनके। So I don't think that would be possible again. और जो नई जनरेशन है, they will lack the spirit. So in order to give the spirit further to the coming generations, we have to now use the team together so that अभी से ही आपके जो हर आदमी के 5 लोग आज ही इस टीम में सीखना शुरू कर दें. When this team is growing from the sprouting to the stem. तो इसी में ही अगर औरों के भी 5 जुड़ जाएंगे तो आई एम श्योर वी कैन कीप एवरीबॉडी टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम. अगर यहाँ बीच में गैप पड़ गया दैट ये टीम जल्दी ऊपर चलेगी और नीचे वाले लोग ऐसी रूट लेवल पे रह गए, सो इनके लिए वापस आके काम करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सबने पेंटागन देखी हुई है, सो पेंटागन पे ही सब काम करेंगे. ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स टू गेट फ्री, सो व्हाई वुड एनीबॉडी वेस्ट टाइम डू थिंग्स व्हिच दे डोंट हैव टू. तो आपको अभी से इस टीम स्पिरिट को लेके अपने साथ लोगों को, नए लोगों को, 5 लोगों को, 10 15 20 नीचे जो है 3 लेवल तक ला के इस टीम में जोड़ दो, क्योंकि अभी बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि देर लगती है ऐसा लाने के लिए, ऐसा माहौल बनाने के लिए. लेकिन एक बार अगर माहौल ये बना रह गया, सो देयर विल बी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट द एंटायर टाइम. क्योंकि मैं जब जॉब्स की मूवी हेलो, I can't hear anyone. हाँ जी, अच्छा, आप पीछे एकदम से नेटवर्क चला गया था आपका, दोबारा से बोलोगे. जब जॉब की बात कर रहे थे वहां पे खत्म हो गया था. तो उसने फिर उसके बाद उसने जब आईपॉड बनाना था तो दोबारा ही वेंट इनटू द कंपनी एंड ही ट्राइड टू चेक ऑल द डिपार्टमेंट्स, सारे डिजाइनर्स, क्योंकि उसका तो डिजाइन ही था शौक. तो डिजाइनर्स के पास गया, वो देखा उनको बोला कि आप क्या ये बकवास बना रहे हो आप, ये मेरी कंपनी है लेकिन क्या बकवास बना रहे हो. तो उन्होंने कहा तू वापस आ गया. उसने कहा नहीं, अभी नहीं वापस आया, पर जो कुछ भी आप काम कर रहे हो यहाँ पर इट्स ऑल नॉनसेंस. आप आज सारा दिन कुछ नहीं करोगे, वही करोगे जो आपके मन में आता है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, एनीथिंग क्रेजी, जो भी आपको करना. सो एक लड़के ने उसको फिर जो लेटेस्ट एप्पल का पीसी था वो बना के उसकी पिक्चर बनाई थी. वो इंग्लैंड का था लड़का. फिर उसके बाद उसने आईपॉड लॉन्च किया था. सो ही वाज लाइक जब कभी भी वो काम करता था जॉब्स, सो ही नेवर वाज सेटिस्फाइड वन, and secondly he always thought of being more creative. कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं मेरे को masses के साथ चलना है, even though it was his company, even though he was the owner, but वो जब हट गया था तब भी वो वही चीज सोचता था जो उसको करनी है. So that is why whenever you build a multi-level marketing business also, you have to remember that कि जो कुछ भी हम करें वो ऐसा हो कि बिकॉज जब उसका बीच में पीरियड नहीं था, जब वो वहां पर नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन तो खड़ी थी लेकिन जो माहौल था, सो देन ही टुक आउट पीपल अगेन. जैसे वो जिस तरह से उसने हमेशा अपनी टीम तैयार की थी, उसने फिर उस टीम में से छांट के लोगों को निकाला और फिर से वही एनवायरनमेंट क्रिएट किया. तो उस लड़के ने बोला भी, उस इंजीनियर ने, डिजाइनर था, कि we do work for Macintosh, but we still miss the days when we were crazy, when we were kids, when we were trying things, when we were we believed in color. We saw colors, but we manufactured black and white. आपके टाइम में हम कलर्स देखते थे और कलर्स में ही लोगों से बात करते थे. So we want to put colors in Macintosh. तो वो पुराने दिन हमें भूलते नहीं है. So that means Steve Jobs जब भी organization में गया तो he brought that energy back to the group. So this energy is available now. Let's not lose this energy and let's use it for everybody's good, so that creativity आती रहे, नया कुछ ना कुछ होता रहे और things are more fun to do and are excitement जो है it's always high and we are going for a purpose.
तो उसके साथ कुछ ना कुछ फन भी, मोनोटोन नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए. That's what my point is. That's it. That's all from my side. हम बंद भी कर सकते हैं. It's 1 hour now. It's too much. कुछ कहना तो कह सकते हो. I'm listening. दिस फाइनल पॉइंट अभी आज में आपने बड़े अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव्स लेके आए हैं. पहला पर्सपेक्टिव जो टीम का पर्सपेक्टिव है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डीप है, वो समझ में आया. उसमें बॉन्डिंगनेस, कनेक्टेडनेस की बात समझ में आई. और दूसरा पर्सपेक्टिव जो आपने एनर्जी को लेके आए आप, कि हाउ द टीम्स एनर्जी कैन बी यूजफुल एंड हाउ टू यूज दिस एनर्जी दैट वी हैव क्रिएटेड. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे काफ़ी एनर्जी आ सकती है हमारी टीम में. और इनफैक्ट एनर्जी तो आई हुई है, बस आपको एक्शन लेना है. और मेरी तरफ से तो प्रॉमिस है कि मेरी तरफ से जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. अ लॉट ऑफ आइडियाज आर कमिंग. सो आई थिंक उसके बाद आपने जो इंटरेस्टिंग लव की बात भी करी है, दैट इज़ वेरी वेरी डीप. और इंटायरली नए लेवल पे हम लोग आज का सेशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. Thank you so much once again. Sure, welcome. ठीक है भाई, thank you so much. हाँ जी, it's long now. Yeah. All Okay. the best. Thank you so much. See you in the evening, 7:40. Yes, 7:40. Bye. Bye. See you in the evening. Okay, bye.